So fine, gentlemen, we are on now. Almost 14 people are here, so we can start now. We will not wait for anyone for whatever reason. So let me give the brief introduction to the Megha. Megha is a graduate from National School of Drama, and I have seen many of her productions in the final year, particularly Diploma and others. And also she worked into the National School of Drama Repertory Company, which is, I suppose, for 1 year, right? Yeah. Okay. And then she moved to Bombay, and she has done a couple of ad films and also a substantial role in one feature film, which I saw called Moti Choor Chakna Choor, right? That was the name. Okay, so sometimes I get confused with this name. So she has been teaching on and off here and there, and she has conducted 2 or 3 times classes in FTI in craft film school for those students who are doing the preparation for FTI entrance exam. So today we roped in for doing the 2 days classes on Bertolt Brecht and one more technique which we will talk about tomorrow. So today's class is concentrated on one of the most important and most influential person from Germany in theater particularly. And very often you will hear his name, not just as a theoretician, but he has written a couple of plays which are performed all over the world, including India, for sure. So, Megha, you can start. Or if you want to say something, you can begin with that, and then I would follow. Okay. First of all, I would like to ask, is it allowed that is it possible that if I want to communicate with the students, will it be possible for them to respond? Yes, it should be because I always say, kindly switch on your videos, but sometimes people do, sometimes they don't. So it's their call, but at least we can do the announcement. We have already done it. So okay. All right. First of all, I would like to say my name correctly. It is Medha, Medha. All right. I'm very particular about my name. And I taught in, I have been teaching since I was class 10. I have been teaching Bharatnatyam, and then I taught dramatic arts in Amity University, Aft Film School, and many more coming. All right. So the first question which I would like to ask you people, the students here, all right, and I absolutely want your response to it before we start studying Brecht. Ki, whenever you go to watch a play or to watch a film, what is the motive behind it? What is your ultimate मोटिव बिहाइंड, अच्छा ये फिल्म आ रही है, बहुत अच्छा है, सुना है, चलो चल के देखते हैं, या फिर ये फिल्म, ये प्ले होने जा रहा है, सो लेट्स गो एंड वॉच. व्हाट इज योर अल्टीमेट वेरी सिंपल मोटिव बिहाइंड वाचिंग दैट फिल्म और a play? Rohan, I could see Rohan. So Rohan, would you like to answer that? It is very important that we start on with this question before we start with Brecht. Ma'am, I would not like to intellectualize my thought. No, very simple, like a layman. Yeah. A film or a movie. Yeah, absolutely not. So basically, to watch a film, I first to basically watch a film, I first like to get into the mood of watching the film, prepping myself that I'm going to watch a particular kind of film. I would read something about it and would like to get in the mood of what I'm getting into. I don't like to get in. I'm not a very big fan of getting into a film just chal raha aur dekh rahe hain. I like to first thoda sa read about it. What is it? Recently, I watched. Again, I rewatched Phantom Thread. So it was something I was in the mood of watching the Phantom Thread. So I watched it. So that's the basic instinct that just connects with me. All right. So when you watch a film, it's purely a gut reaction on film. Okay. So when you watch a film, Yes, what ma'am? kind of an effect? When you watch a film, what kind of an effect does it have on you? Do you really delve into the story, and then you at one point of time you start imagining, relating to the character? Ki, oh my God, I wish I could play this character. All right. So such things happen.
Yes, of course. Like many of us, things like that happen after the completion of the movie. I get into the like mood of like that character or something. It is not in a very acting stand of point of view or a cinematic stand of point of view, but it just feels like, oh, maybe if I was the guy, like it feels like that. Then second of all, when that thing subsides, I tend to have a habit of writing about the film. So I dwell into writing what all like I think about the film, what all interacted with me very well. If it's the cinematography or the acting, anything which really connected. Okay. So when you watch a film or when you watch a play and when you really like it, do you tend to forget your tension? जो भी tension था, अरे थोड़ी देर के That is लिए भूल always an गए. escapism. Yeah, of course. That is Right? always an escapism. Escapism. Yes. And then also most of us, might not be us, but most of the audiences, the motive behind watching a film or watching a play is for some time they want some entertainment which would help them to forget their worries, forget their tension and stuff like that. Do we all agree to this? Yes, yes, Yeah. ma'am. Siddhant? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. All right. So let's start with Brecht now. It was very important that we asked this question to ourselves: ki why do we watch a film or why do we watch a play? All right. Because आप लोगों ने जो भी अभी तक आंसर दिया, ब्रेख्ट का इंटेंशन ठीक उसका ऑपोजिट है, ठीक उसका ऑपोजिट है. ठीक है. Theater or a film is not a medium, is not only a medium of entertainment. It is much, much more than that. Okay, so let's start with this. So Bertolt Brecht was a German playwright, poet and theatrical reformer. ये सारे कुछ बस facts है. थोड़े हम पहले उनके बारे में जान लेते कि what is the backstory and then we will come to the work part. ठीक है. He was born on February 10th, 1898 in Augsburg, Germany, and died in 14th August 1956 in East Berlin. So he was 58 years old when he died. All right. So in these 58 years, a lot of things happened in and around the world, where in the world where Brecht was living. All right. So what were those things? Firstly, the First World War was happening when Brecht was 16 years old. So throughout his life, he has seen certain very crucial crucial happenings in history, like the First World War. Okay, he was just 16 years old and he saw one of his, not one of his, many of his classmates, many of his friends who got killed because of the war was taking place. They got engulfed by the war. All right, so that he saw around him. Then there are a lot of things which have happened, but we will just focus on the main things. Okay, so when he was in and then after his schooling, when he was in school, he began writing essays criticizing certain very like, for example, there is a Roman poet called Horace. All right. So there is a very famous line by Horace: Dulce et decorum est pro patria mori. So what is the meaning? First, let's understand the meaning behind this line, and then we will understand why Brecht wrote an essay on it. So the meaning is, it is sweet and fitting to die for the homeland. Okay. When we hear this line, this is a very familiar line we hear. बहुत सारे जो, people especially who work for the country, especially the army people, they would really agree. They would say, maybe they have said something very similar in their lives. That is their philosophy. But why Brecht had written an essay against these lines, saying ki this is a propaganda by the state.
Many of us might agree to it, might not agree to it. Let's not go into that, but let's see what is the fact. Okay. So he had written an essay on this ideology, this philosophy, because of which he was about to get suspended from the school, but somehow वो बच गए. ठीक है. So this was when he was in school. ये बहुत पहले की बात है. Then in 1917, 1917 में he got enrolled in Munich University. And in which department he got enrolled? In medical department. So medical department में उन्होंने एक मतलब अपना admission लिया, but medical में लिया, but there he began to he started reading and studying drama there. Okay, and that is precisely where his introduction to drama happened. Okay. So when you are in a university, you read a lot of things other than your own subject. Okay. So drama was one of them, and it changed Brecht's life. Now, when he started reading drama in the university, तो Benjamin Franklin Wedekind, इनके writings सबसे ज़्यादा Brecht को influence करने लगे. Why? Because he this writer Benjamin Franklin, he spoke about, he very openly he expressed against the bourgeois attitudes. He criticized the bourgeois attitudes, and that is precisely what hit Brecht. क्योंकि उन्होंने अपने अर्ली एज में अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी जो we are equals, then why someone is engulfed by the war and some people just escaped? All right, so such contradictory thoughts kept on coming in his mind since a very early age because of the things happening in and around him. And when he started reading this writer, तो उनके writings में वो जो bourgeois mentality को जिस तरीके से criticize करा जा रहा है, he could relate to that thought. And that's when he started to, you know, वो चीजें influence करने लगी उनको. ठीक है. Now, from 1916, Brecht began publishing essays from newspapers, mostly as a theatre critic. तो बहुत ही कम उम्र से 1916, he was still in the university at that time. So उस time से ही, not university, even before that, तो उस time से ही he started to criticize the theatre, what was happening in and around, because most of the times उस जमाने में ज्यादातर theatre was happening just for the sake of entertainment. At times, those entertainment would even go down to the cheaper levels. Now, when you understand कि एक play बनाने में या फिर एक film बनाने में इतना effort लगता है, and it is such a powerful medium, why do you want to waste it only to entertain people? We can bring some change. All right, so these were the thoughts behind all the criticism he has written in his essays about the theatres happening in and around him. All right. Then he after his after Brecht completed his medical course, he even started working as a medical orderly in a medical VD clinic in Augsburg. वो एक clinic में वो medical orderly की तरह भी काम करने लग गए थे. Now, after that, in February 1933, when Hitler took over Germany, ये थोड़ा सा हमने लीप लिया है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट जो घटनाएं थी पहले उस पे हम फोकस कर रहे हैं. तो 1933 में when Hitler took over, Brecht, he fled Germany. जर्मनी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि by that time he had already become a very prominent name थिएटर के फील्ड में, या फिर आप कह ले कि एक जो रिबेलियस थिएटर जो है, तो उस फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम हो गया था तब तक ब्रेक्ट का. एंड ही वाज रियली अफ्रेड कि भाई अभी
हिटलर का राज आ चुका है, तो it might be very risky for me to stay here, तो he just fled Germany. ठीक है, जर्मनी छोड़ के वो चले गए. During the war years, Brecht became a prominent writer of the German exiliterature. Exiliterature मतलब exile literature. Exile literature का मतलब क्या है? Writings about the refugees and Can you hear me? Yeah, please carry on. Okay, so there is a power cut, so I guess it is fine that you only hear my voice. No, that's fine. Carry on. Okay. So, just a minute. So, by that time, Brecht had become a very prominent writer who used to write about the refugees in Germany, not in Germany, refugees outside, and the Germans who were displaced. Specifically more about the Jews because they were the one जो भाग रहे थे जर्मनी से. तो उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे नॉवेल्स. Now, he was against National Socialism and Fascism, which was expressed in plays like Life of Galileo, Mother Courage, and Her Children, The Resistible Rise of Arturo Ui, and The Caucasian Chalk Circle, and so on. तो ये सारे जो plays हैं, इनमें आप ये जो फासिज्म के अगेंस्ट, नेशनल सोशलिज्म के अगेंस्ट जो एक फिलॉसफी है, ये बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है इन सारे प्लेस में. देयर आर मेनी मोर प्लेस, दीज आर जस्ट फ्यू टू नेम. Because there is a power cut, I'm really struggling to see the lines. Please pardon me for that. So during the Cold War period, Brecht was blacklisted by film studio owners and interrogated by the House of American Activists, so activist committee. So after he fled away from Germany, he had taken shelter. Ultimately, he stayed in Denmark for some time, and then after some time he started to work for the Hollywood. All right, and that was precisely the time when, after a point of time, the studio owners had started boycotting him, fearing कि अरे भाई इसके साथ का इसका तो ऐसे ही बहुत बदनामी है, गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है, तो इसके साथ हम लोग काम करेंगे तो हमारा भी काम रुक जाएगा. तो they started boycotting him. Then Brecht hated realism. अब थोड़ा उनका नजरिया क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं. अच्छा, Brecht was interested in Karl Marx theories of socialism, social justice, criticism of capitalism, questions who has money and power, industrialization and its effect on workers, and power structure in society. So Brecht was very much influenced by the works and the ideologies and philosophies introduced by Karl Marx. एक हर एक चीज को क्वेश्चन करना, ठीक है, एक नेशनल सोशलिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि नेशनल सोशलिज्म के वजह से there are people who suffer in between these ideologies. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से क्या इफेक्ट्स आई सोसाइटी में. So all these Brecht was very much influenced by these ideologies, and those reflections can be seen in his plays. All right. Now, Brecht hated realism. As an actor, we are very much fascinated by realism, but
ब्रेख्ट का जो आइडियोलॉजी है, he hates realism. Why he hates realism? Because ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप जब कोई फिल्म देखने जाते हैं या कुछ भी देखने जाते हैं, कोई फिल्म या कोई प्ले, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट एस्केपिज्म होता है. तो रियलिज्म, you know, realism takes us away from our own realities which are going around us. उससे हटके थोड़ी देर के लिए अपने जो रियलिटीज है, अपने जो प्रॉब्लम्स है, उसको थोड़ी देर के लिए हम भुला देते हैं. तो ब्रेख्ट वाज टोटली अगेंस्ट दिस. Brecht hated realism and compared it to escapism. He also compared realistic theater to the effect of a drug. He used to hate realism so much that he could even compare it to drugs, because ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि ड्रग्स का इफेक्ट क्या है. इट मेक्स यू unconscious of what is happening around you. So realistic performances, realistic plays and films, they are no less than drugs. That's what Brecht says. All right. Then theater should not be escapism, rather make the audience question what is being shown. All right. And जो दिखा रहे क्यों हो रहा है, it should be disturbing as an audience. You shouldn't be a part of it by, you know, relating to it. हाँ, ये तो अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है. No, it should be disturbing to you. You shouldn't be comfortable with what is being shown. That's what the theater of Brecht intended to do. He made the audience provoke the audience, to make the audience uncomfortable with whatever is being shown. If that is not happening, if the audience is not questioned, if the theater is not being used for a vital change, then it is a waste of an audience. हम अपने audience को waste नहीं कर सकते. It used to be, he referred it to as हम audience को waste कर रहे by giving them mere entertainment. Why? All right. Now let's start to understand what is epic theater. Epic theater is something which is very much coined, very much talked about whenever we talk of Brecht. Epic theater की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, because epic theater is something which was started by Brecht. Brecht was one of the pioneers behind epic theater. Now what is epic theater? Let's understand that. It is a theatrical movement arising in the early to mid 20th century. All right, this was a theatrical movement. This was a response to the political climate of the time through the creation of new political dramas. तो जो भी आसपास चल रही हैं, ठीक है, जो भी चीजें आसपास हमारी चल रही हैं, उसी को लेके पॉलिटिकली सोशली जो चीजें चल रही हैं, उन्हीं को बेस में रख के हम उनको लेके ड्रामा बनाए, एक प्ले बनाए. All right, that was the base of epic theater. Now what were the characteristics of epic theater? That is something very important one should remember and understand. Okay, now what are the fundamentals of epic theater? The first thing is alienation effect or Wolframdung's effect. ये जर्मन में है Wolframdung's effect, यानी alienation effect. Alienation effect का मतलब है कि ये जो मैं अपने सामने प्ले देख रहा हूँ या फिल्म देख रहा हूँ, इसमें जो कैरेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ. ये एक प्रेजेंटेशन है, एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन है जो दिखाया जा रहा है, और वही दिखाया जा रहा है जो मेरे चारों तरफ होता है. So don't get, you know, in that subconscious state of mind of an audience की ओ बाहुबली देखा होगा आप लोगों ने, है ना? बाहुबली देखा होगा. No, बाहुबली is not an example of epic theater. ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है. बाहुबली का एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ. When we watched Bahubali, many of the audiences, what happened with them is बाहुबली को देख के वो इतना ज्यादा इंस्पायर्ड होने लगे कि कहीं ना कहीं उनको भी ये लगने लगा कि काश ये हम भी होते.
हाँ इसमें इतना वीर रस है कि हाँ we also want to look like this, I also want to behave like this, I also want to become a king like this. तो such reflections you get, such क्या बोलते हैं उसको, कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखने लगते हो, क्योंकि वो एक हीरोइज्म है वहां पे, बहुत ही आइडियलाइज्ड हीरोइज्म है उसमें, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये एस्थेटिकली करेक्ट है, लेकिन रियलिटी में हमारे चारों तरफ तो ऐसा कोई बाहुबली है नहीं. Then why do we need to show that? Why do we need to escape the reality? हाँ, yes, Rohan. Can you give an example, for example, from a movie? कि हाँ. maybe this is a little towards depicted. Little. Towards okay. आपने तमाशा देखा है? Yes, मैम देखा है. हाँ. तमाशा में एक्चुअली यू नो व्हाट, हम आगे एपिक थिएटर और जितना समझने लगेंगे ना, आपको और समझ में आएगा कि एपिक थिएटर क्या है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, यू माइट नॉट बी एबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एपिक थिएटर क्या है. ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट. हाँ, सो वी विल टॉक मोर डिटेल्स इन इट. सो एलिनेशन, कि मैं अलग हूँ, ये परफॉर्मेंस मेरे सामने जो हो रहा है ये अलग है, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे चारों तरफ जो होता है ना उसी का एक डिपिक्शन है, बट नॉट अ रियलिस्टिक डिपिक्शन. दैट्स व्हाई इट इज ऑल द मोर alienated from what is happening. It is alienated from me as an audience. ठीक है, इट इज कंटिन्यूअसली रिमाइंडिंग मी कि जागो, ये एक परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है. ये कंटिन्यूअसली ये पोक करते रहना ऑडियंस को. सो दैट इज एलियनेशन इफेक्ट. नाउ playing or performing in a way that the audience was hindered from simply identifying itself with the characteristic in the play. All right, जो कैरेक्टर्स है प्ले में, कंटिन्यूअसली हिंड्रेंस आ रहा है कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू दैट ऑडियंस ऑन पर्पस, एब्सोल्युटली ऑन पर्पस. ठीक है. सेकेंडली, the next fundamental of epic theater is distancing effect. Distancing effect यानी क्या होता है कि when there is a performance, be it a play, be it a film, when there is a performance, there is a very sharp establishment of the fourth wall. Now, what is the fourth wall? Can anyone? The audience. हाँ, the fourth wall is ये जो एक pretend करना कि as a performer मैं तो अभी सिचुएशन में हूँ, मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, तो हम ऑडियंस को नहीं देखते, हम कैमरा को नहीं देखते. ठीक है, हम ऑडियंस के आई साइट को या कैमरा को अवॉइड करते हुए हम इधर उधर देख के हम परफॉर्म करते हैं. व्हाई? जस्ट सो दैट जो ऑडियंस है उनको ये फील हो कि यू आर जस्ट, आप जैसे कि आप एक खिड़की में से झांक रहे हो, जिसको देख रहे हो उनको नहीं पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है सारा कुछ. ठीक है, तो बस आप झांक रहे हो. तो यही चीज, और एक टाइम के लिए भुला देना ऑडियंसेस को कि उनका जो प्रेजेंस है वो नोटिसेबल है. ठीक है, एक्टर्स इस तरीके से एक्ट करते हैं एज इफ सामने ऑडियंस है ही नहीं, और एक पॉइंट के बाद ऑडियंस भी भूल जाती है कि हाँ हम हैं, और एक्टर्स को पता चल रहा है, वो भी भूल जाते हैं अपने एग्जिस्टेंस को वहां पे. सो इसी चीज को तोड़ने के लिए, तो इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये जो ना देखना ऑडियंस को या ना देखना कैमरा को, तो दैट इज द फोर्थ वॉल. वी एक्टर्स वी क्रिएट दैट फोर्थ वॉल. ऑलराइट, यहाँ डिस्टेंसिंग इफेक्ट में उसी फोर्थ वॉल को तोड़ना है. ठीक है, डायरेक्ट ऑडियंस से बात करना, डायरेक्ट ऑडियंस से एक आई कांटेक्ट बनाना. So all that. Now that these are the activities on stage which somewhere breaks the fourth wall right on your face, right on the face of the audience. और ये जता के कि मैं ये तोड़ रहा हूँ, तोड़ रही हूँ, ये जो फोर्थ वॉल है ना ये है नहीं. ठीक है, I as a performer, I absolutely know that you are there, you are hearing me, and I want you to hear this, I want you to see this. देखो, ये देखना है, मतलब जैसे कि कान पकड़ा के ये देखो,
ये दिखाना चाहते हैं, and is it not bothering you? So creating those kind of effects, ठीक है. वैसे अगर ये फोर्थ वॉल को तोड़ने की बात हम करें तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी ओरिजिनल ऑफ एपिक थिएटर, ओके, बिकॉज ऐसी चीजें हम ऑलरेडी बहुत देख चुके हैं. अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें या फिर अगर हम इंडियन क्लासिकल ड्रामा की बात करें, वहां पे विदूषक का जो कैरेक्टर है, तो विदूषक क्या करता है? विदूषक इज द कॉमेडियन. विदूषक डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है. तो हियर in Sanskrit drama, what happens? Vidushak directly talks to the audience and breaks the fourth wall. So this breaking of the fourth wall is not an original concept in epic theater, but the usage of it. क्या impact बनाना चाहता है by breaking this fourth wall, this distancing effect is absolutely different than what we have seen happening before the epic theater. ठीक है. संस्कृत प्ले में विदूषक ऑडियंस से बात करता है उनको एंटरटेनमेंट देने के लिए और ज्यादा बांध के रखने के लिए, ठीक है, ताकि एक पॉइंट के बाद ऑडियंस को भी लगे कि हाँ भाई हमारी भी वैल्यू है, अदरवाइज क्यों ये एक्टर हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है चलो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, किसी भी वक्त ये मेरे पास भी आ सकता है और सब लोग मुझे भी देखेंगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ मोटिव्स और दीज आर द काइंड ऑफ थॉट्स व्हेन कन्वेंशनली या एपिक थिएटर से पहले जब फोर्थ वॉल ब्रेक किया जाता था. एपिक थिएटर में फोर्थ वॉल ब्रेक किया जाता है एंड वी हैव स्पोकन व्हाई, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा और कॉन्शियस कर सके कि तुम क्या देख रहे हो, देखो इसको समझो. नाउ audience can no longer have the illusion of being the unseen spectator at an event which is really taking place. ठीक है, ये इस चीज को ना हम इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं. कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ मारपीट हो गई, ठीक है, मारपीट हो रही है दो लोगों के बीच में एंड एट टाइम्स आसपास बहुत सारी भीड़ खड़ी हो जाती है. दे आर द अनसीन स्पेक्टेटर्स. बीच में जो लोग हैं ना वो अपना झगड़ा कर रहे हैं और आसपास जो लोग हैं ना वो, हम क्यों कहते हैं, व्हाई डू वी से कि हाँ ऑडियंस बन के बाकी लोग तो देख रहे हैं, ठीक है, they are just spectators, they are taking the rush out of that event. That is something which the actors of epic theater wanted to stop. कि ये जो आप अनसीन स्पेक्टेटर की तरह ऐसे रास्ते में कुछ हो रहा है और आप ऐसे देख रहे हो और एंटरटेनमेंट ले रहे हो, ये नहीं करने देंगे हम, ये नहीं होने देंगे, ठीक है. नाउ नाउ एपिक थिएटर में जो प्लेज होते थे या फिर जो भी परफॉर्मेंसेस होते थे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? The dramatic constructions involved a montage technique of fragmentation, contrast and contradiction and interruptions. ठीक है, ये जो मोन्ताज टेक्निक है, ये ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा ये चीजें यूज की जाती थी एपिक थिएटर में, ब्रेख्टियन प्लेज में, कि एक सीन में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, एक ही सीन में यहाँ पे ये हो रहा है. जनरली क्या होता है, हम कोई भी सीन देखते हैं तो वहां पे एक फोकस्ड एक्टिविटी हो रही होती है, एक कैरेक्टर या दो तीन कैरेक्टर जो भी है, एक सिंगल इवेंट होता है और उसी में हम फोकस करते हैं कि सारा फोकस उसमें होता है, लाइट भी उसी पे, सारे ऑडियंस उसको देख रहे हैं, बात भी वही कर रहे हैं, ऑलराइट. But when it is fragmented, when the whole scene is fragmented, then at the same time, at the same space, there are different activities or different events happening at the same space. तो fragmented है, space wise fragmented है. स्टेज के इस कोने में ये हो रहा है, स्टेज के उस कोने में कुछ और हो रहा है. शायद इन सारे, ये जो सारी घटनाएं हैं, ये आपस में कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है. नाउ व्हाई दिस वाज डन? क्या होगा ये करने से? अगर ऑडियंस फोकस ही ना कर पाए तो क्या फायदा है इसका? ये किया जाता था इसलिए क्योंकि अगर आप इस चीज को अपने लाइफ से कंपेयर करें थोड़ा सा, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज, right now here I am taking a class
there on the other room there is some recording happening which has no, absolutely no connection with what is happening right now here between us. ठीक है, ये जो क्लास चल, इधर क्लास चल रही है, उधर कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रहे हैं, इस रूम के बाहर कुछ और चल रहा है, कुछ क्लासेस चल रही है, म्यूजिक क्लासेस चल रही है, ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन. इसी बीच में कोई एक घटना घटती है which might affect me, which might not affect the other people. The way it will affect me, it might not affect the other people, but we are at a under a single roof. So it is very much connected to life if you see it in that way. ठीक है. So इसी वजह से यही सारी चीजें establish करने के लिए, and also to create, to make the audience question कि ऐसे क्यों दिखा रहे हो. They wanted the audience to question, कि हाँ आओ पूछो ना, हम बताएंगे, तुमको नहीं समझ में आएगा तभी पूछोगे ना, तो हम बताएंगे, but we really want you to understand the motive behind all these. ठीक है. So fragmentation, एक ही अलग अलग एपिसोड्स, ठीक है, सीन्स नहीं. सीन किसको कहते हैं? एक ही स्टोरी का अलग अलग हिस्सा होता है सीन. लेकिन ब्रेख्टियन थिएटर में एपिसोड्स होते हैं, यानी कि 10 मिनट का या 5 मिनट का एक अपने आप में कंप्लीट एक घटना. ठीक है, 5 मिनट का कोई सीन ऐसा जो दो लोगों के बीच का झगड़ा दिखा रहा हो. अभी इस सीन के बाद जो सीन आएगा जरूरी नहीं है कि उसके साथ ये वाला सीन कनेक्टेड हो. नाउ दिस, ये जो 5 मिनट का सीन जो दो लोगों के बीच का झगड़ा दिखा रहा है, ये अपने आप में एक स्टोरी है. इट इज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस इन इटसेल्फ. सो इट इज एन एपिसोड व्हिच माइट नॉट बी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एपिसोड और द नेक्स्ट सीन व्हिच विल बी हैपनिंग. ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रेगमेंटेशंस होते थे बहुत सारे. कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट इन व्हाट वेज? यहाँ पे एक बहुत ही सैड सीन चल रहा है, अचानक से एक जोक क्रैक कर दिया जो कि शायद रेलिवेंट नहीं है उस सैड सीन में. यहाँ पे कोई आदमी मरा पड़ा है, और एंड देयर आर द अदर कैरेक्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट एन एम्बुलेंस. ठीक है, इट इज अ पैथेटिक सिचुएशन. सडनली कोई बीच में आया एक एक्टर और एक जोक क्रैक कर दिया कि ऑडियंस में से कोई है, अरे भाई साहब आपका जो टकला है ना बहुत चमक रहा है. नॉट एब्सोल्युटली नॉट कनेक्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो ये सारी चीजें बीच बीच में करना, क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट इन सीन्स, क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीन्स, these were a very common thing. These are a very common thing in epic theater. ठीक है, ये जो बीच में एक जोक क्रैक कर देगी, इससे क्या होगा? ये जो ऑडियंस who had just started to connect या फिर who had started to empathize with the sad scene, उसको तोड़ देना कि ये रियल नहीं है, ये एक नाटक है और हम आपको देख रहे हैं, आप भी हमें देख रहे हो. देयर इज नो फोर्थ वॉल. अभी तक जो आप नाटक देखने जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ये वो नहीं है, हम नहीं होने देंगे. तो इन सारी चीजों को इस तरीके से धीरे धीरे एस्टैब्लिश किया जाता था. ठीक है. इंटरप्शंस जैसे कि यही कि आप देख रहे हैं बीच में किसी ने टोक के कुछ एक कमेंट कर दिया, कुछ एक बोल दिया, या फिर जो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, there is a series of activities the performer is doing and suddenly there is another actor who has come and interrupted the activity, the series of activity. ठीक है, वो शायद लकड़ी काट रहा है, वो बीच में आके इंटरप्ट कर दिया कि अरे यार थोड़ा पानी तो, अरे तुम ना बाहर जाओ, बाहर ही भेज दिया उसको. These things can happen in epic theater. All right. Now, Brecht calls this non-Aristotelian drama. Aristotelian drama जो है वो एक conventional narrative, जो कि एक linear narrative जिसको हम कहते हैं, जिसका एक proper हमें beginning middle end दिखता है. ठीक है, हीरो हीरोइन आए, हीरो आया बहुत स्ट्रगल कर रहा है, हीरोइन आई वो भी स्ट्रगल कर रही है, फिर स्ट्रगल करते करते दोनों मिले एक दूसरे से. मैं एक बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत ही घिसा पिटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को. ठीक है, ठीक है. हीरो हीरोइन आए, दोनों मिले, दोनों में प्यार हुआ, फिर विलन आया, मारपीट हुई, विलन हार गया, हीरो जीत गया और लास्ट में दोनों की शादी हो गई, खत्म. दिस इज अ वेरी लीनियर नैरेटिव.
and it is also known as Aristotelian narrative, ठीक है, Aristotelian drama, जो कि बहुत ही कन्वेंशनल है. ब्रेख्ट के प्लेस जो है या फिर जो एपिक थिएटर है बहुत ही ज्यादा नॉन लीनियर है, एब्सोल्युटली नॉन लीनियर, एंड that's why it is known as non-Aristotelian drama. ठीक है, non-linear plots and episodes, not scenes. Scenes नहीं कह सकते हम, episodes कहेंगे. क्यों कहेंगे? क्योंकि I think I already explained why it is episode and not scene. Then now थोड़ा सा इसको अगर और कि Brecht, how Brecht would explain this particular thing, ये जो फ्रेगमेंटेशन हमने बताया या नॉन एरिस्टोटेलियन ड्रामा हमने जो बताया, ये ब्रेख्ट किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि each scenes and each section within a scene must be perfected and played as rigorously and with as much discipline as if it were a short play, complete in itself, and without there being the slightest suggestion that another scene or section within a scene is to follow those that have gone before. मतलब इससे पहले जो सीन गया इसके बाद के सीन के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है. पहला सीन अपने आप में एक कहानी है, पूरी की पूरी कहानी, बाद का सीन पूरी की पूरी अपने आप में कहानी है. ठीक है. Now, in epic theater, there is also a lot of historication. What is historication? ये हम epic theater के अलावा भी बहुत सारे plays में, बहुत सारे conventional plays में भी ये हम कई बार देखते हैं. That is historication. Historication का मतलब है drawing connections from a historical event to a similar current event. Mother Courage and her children and the good person of Rizwan, these are very good examples of historication. All right, these plays comment on a current social or political issue using historication or historical context. हिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं जो आज के घटनाओं से सिमिलर है, उसके साथ एक कंपेयर करके या फिर उससे सिमिलर है इस वजह से उस हिस्ट्री का एक रेफरेंस देना कि अरे ऐसा ऐसा हुआ था हिस्ट्री में, ऐसे राजा थे, उन्होंने भी, अभी तो ऐसा चल रहा है हिस्ट्री में भी, या फिर ऐसे एक टाइम पे एक राजा थे जिन्होंने भी ये रूल लागू किया था. तो दोस काइंड ऑफ रेफरेंसेस in terms of text, in terms of videos, in terms of photos, in terms of placards, in any way. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो हिस्टोरिकल इवेंट हो चुका है उसको आप वापस से ड्रामेटाइज करके दिखा रहे हो, दिखा भी सकते हो, लेकिन उसके और भी तरीके हैं. वो उसमें वीडियोस भी यूज हो सकते हैं, ओरिजिनल फुटेजेस, एक्चुअल फुटेजेस यूज हो सकते हैं. ठीक है, प्लेकार्ड्स यूज हो सकते हैं, फोटोज यूज हो सकते हैं to refer to that historical event. Then non-realistic and simple scenic design. ठीक है, common production technique in epic theater include a simplified non-realistic scenic design effect against a selective realism in costume and props, as well as announcements or visual effects, captions that interrupts and summarizes the action. So ये जो नॉन रियलिस्टिक अप्रोच है या फिर सिंपल सीनिक डिजाइन है, हम जब क्या डिफरेंस है, रियलिज्म हम कब कहते हैं, जब जो दिखाया जा रहा है that is so much connected to what is happening in reality, as in a direct representation of the real world. All right, now that prohibits you from alienate yourself from what is being shown. इसमें क्या होता है, एपिक थिएटर में क्या होता है, बहुत ही नॉन रियलिस्टिकली वो एक सीन करेंगे. मान लीजिए
देयर इज अ सीन ऑफ लकड़ी काटने का एक सीन है, सिंपल एक एक्ट हम लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी हम लेते हैं, लकड़ी काट रहा है कोई, ठीक है, रियलिस्टिकली कैसे करेगा? अगर कोई सीन सच में रियलिस्टिकली इसको परफॉर्म करना है, लकड़ी लेगा, हाथ में कुल्हाड़ी होगी और वो एक्चुअल में काटता रहेगा। इन एपिक थिएटर मे बी अ वे ऑफ डूइंग इट वुड बी एक कुछ भी प्लास्टिक का कुछ भी लेके आ गए, या फिर कुछ लेके भी नहीं आए, बस बोल दिया यहाँ पे एक लकड़ी है और अब मैं इसको काटूंगा, ठीक है, और ऐसे ही उसको मिमिक करना शुरू कर, या फिर जेस्टर्स जिसे कहते हैं, जेस्टर्स यानी एक सिंबॉलिक जेस्चर, कि मैं बस दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही सिंबॉलिक है कि मैं अभी लकड़ी से काट रहा हूँ, ये रियलिस्टिकली मैं नहीं कर रही, ये बस मैं दिखा रही हूँ ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए बस कि मेरी एक्टिविटी क्या है, बस इतना, ठीक है। सो वेरी नॉन रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीन्स। हाँ, वैसे नॉन रियलिस्टिक एंड सिंपल सीनिक डिजाइन्स, यानी कि शायद एक राजा रानी की कहानी दिखा रहे हैं, तो हम जब कहते हैं कि राजा रानी की कहानी है, वी इमेजिन कि हाँ देयर वुड बी ह्यूज सेट, ठीक है, बहुत ही एकदम ताबड़तोड़ लाइटिंग्स होंगी, बहुत सारे प्रॉप्स होंगे, एक सिंहासन होगा। लेकिन शायद अगर एक एपिक थिएटर में अगर एक रॉयल सीन दिखाया जाए तो वो किस तरीके से होगी? हाँ, कुछ भी नहीं है स्टेज में, थोड़ा सा म्यूजिक है, रॉयल म्यूजिक है, या फिर एक फोटो लगा दिया साइड में कि हाँ दिस इज अ किंग्स पैलेस, बस इतना, एक प्ले कार्ड लगा दिया या फिर एक फोटो पीछे चिपका दिया, दिस इज अ किंग्स पैलेस। एंड मे बी सिलेक्टिव रियलिज्म, यानी कि इस सीन में कोई बस एक ही पोर्शन होगा जिसको डिटेल्स में वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, मे बी थ्रू कॉस्ट्यूम, शायद कॉस्ट्यूम बिल्कुल राजा जैसा ही पहना होगा। तो इस तरीके के कुछ सिलेक्टिव रियलिज्म एंड वेरी सिंपल सीनिक डिजाइन्स। ऑलराइट, तो उसमें भी इंटरप्शंस रहेंगे, विजुअल कैप्शंस रहेंगे कि विच विल बी सजेस्टिव कि ये सीन किस बारे में है, ये स्पेस कौन सा है, क्योंकि स्पेस तो एक्चुअली क्रिएट कर नहीं रहे हैं, तो बस सजेशंस दे रहे हैं प्ले कार्ड्स के थ्रू, कुछ फोटोज के थ्रू। इट्स दैट सिंपलिस्टिक। ओके, नाउ यूसेज ऑफ कॉमेडी। हाँ, यस रोहन। Ma'am, my question is, why is it that way? इट इज दैट वे सो दैट ये जो एक एस्थेटिक ब्यूटी है ना, ये जो एस्थेटिक ब्यूटी को परसीव करने के लिए हम थिएटर देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, कोई प्ले देखने जाते हैं, उस चीज को तोड़ने के लिए कि ये जो नॉट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अब तक हमने जितने पॉइंटर्स बताए, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एक ही ब्रेख्टियन या एक ही एपिक प्ले में यूज हो। इसके कुछ एलिमेंट्स जहां जैसा जरूरत है वहां पे वैसे वैसे यूज होता है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव ही ये है कि एक एलियनेशन क्रिएट करना, फोर्थ वॉल को तोड़ना, वो जो आप एंटरटेनमेंट सीख करने के लिए आ रहे हो, हम उसको देने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा मोटिव अलग है। ये सारी चीजों को एस्टैब्लिश करने के लिए ये चीजें फ्रेगमेंट्स में किए जाते हैं। हाँ, यारो Ma'am, is the acting also a little more exaggerated, or? हाँ, we will come to that. Yes, we will come to that. There is a whole टॉपिक ऑन दैट कि एक ब्रेख्टियन प्ले में, मतलब ब्रेख्ट क्या सजेस्ट करता है अपने एक्टर्स को कि आप किस तरीके से एक्ट करो, उस पे हम बात करेंगे, इसके बाद ही हम आएंगे उसमें, ठीक है। नाउ यूसेज ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी को यूज करना नॉट एज अ मीन्स टू एंटरटेन, बट टू क्रिएट सरकाज़म, बट टू प्रोवोक यू, बट टू ये जो एक बहुत ही ड्रामेटिक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इसको तोड़ना है, इसको एकदम स्पॉइल कर देना है, ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक बहुत ही सैड सीन है जहाँ पे एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी शायद बीवी या बेटी है, और चारों तरफ कोई नहीं आ रहा है उसको हेल्प करने के लिए। दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ डॉक्टर, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट एन एम्बुलेंस। नाउ इन सच अ पैथेटिक सीन,
आप एक बहुत ही भद्दा सा फालतू सा एक जोक क्रैक कर देते हो, कोई साइड का कोई भी दूसरा एक्टर आके, ठीक है। अब ये जो जोक क्रैक किया, दिस माइट बी कनेक्टेड टू द सीन, दिस माइट नॉट बी कनेक्टेड टू द सीन। इफ एट ऑल इट इज कनेक्टेड टू द सीन, तो इसका मेन मोटिव है टू क्रिएट सरकाजम। कि मान लीजिए, मैं एकदम एक क्रूड एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि ये सीन मैंने अभी भी बताया, उसमें मैं एज अ डिफरेंट एक्टर आके मैंने ये बोल दिया, भाई इन लोग का जो हो, मैं तो भाग रही हूँ, मेरी आज पार्टी है, मैं इधर इन्वॉल्व हो गई ना, तो फिर तो मेरी इवनिंग ही खराब हो जाएगी। बहुत ही यूजलेस, बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही, बट अगेन वेरी रियल। डोंट वी थिंक इन दैट वे इन लाइफ, वी डू दैट, ठीक है। ये एक तरीका है ह्यूमर को यूज करने का। And then there is another way where you really want the audience to break your emotional connections and empathy. Oh my god, ये तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, बुरा फील मत करो, सोचो कि इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। ये जो कई बार कुछ बुरा हो रहा होता है और कोई बहुत फालतू सा जोक क्रैक करता है, ये आपको प्रोवोक करता है, ये आपको गुस्सा दिलाता है। तो वही गुस्सा क्रिएट करने के लिए ऑडियंस के अंदर, ठीक है, ये कॉमेडीज कई बार उस तरीके से भी यूज होते हैं, टू प्रोवोक द ऑडियंस, टू टिटिलेट द ऑडियंस, कि थोड़ा सा मतलब जल रहा है, आपकी जल रही है, वो सारा कुछ देख के आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपका कलेजा जल रहा है, उस जलते हुए कलेजे में थोड़ा सा नमक छिड़क दिया। ऑल राइट, सो दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट। देन to create now why did they use comedy? To create distancing effect. We have spoken about distancing effect, to create contrasts, sarcasm, and connect it to how we are in life. हम लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत देखते हैं, है ना, कि कुछ चल रहा है, किसी का कुछ बुरा हो रहा है और हम मजे ले रहे हैं। तो वो भी एक तरीका, उस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी है ये, ठीक है। The next point, next characteristic of Brechtian play is large narrative spanning many locations and time frames. Hence, it was epic. Why do we call something epic? Because that thing is timeless, that caters to many different fragments of time and different spaces, उसको हम epic कहते हैं। और इसीलिए epic theater का नाम epic इसलिए पड़ा क्योंकि it is highly, first of all it is non-linear, क्योंकि एक ही समय पे ये अलग अलग space को cover करता है through fragmentation। शायद एक ही सीन में, एक ही स्पेस में, अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग सीन्स जो अलग अलग स्पेसेस हैं वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। दैट इज वन। प्लस ये जो हिस्टोरिकेशन ये यूज करते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ था और अभी भी ये हो रहा है, ये कितना कंटेम्पररी है। एंड दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ सीन और क्रिएटिंग अ प्ले, how it will be always relevant because of historication। और क्योंकि इस तरीके से कोई भी प्ले या कोई भी फिल्म टाइमलेस हो सकता है या फिर हमेशा ये रेलिवेंट हो सकता है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर पैटर्न को एपिक थिएटर कहा गया है। ऑल राइट, सो इट इज ऑलवेज कंटेम्पररी, इट विल ऑलवेज रिमेन कंटेम्पररी। मैम, हाँ, इसीलिए महाभारत को एपिक कहा गया है क्योंकि वो रिलेवेंस होता है टाइम के साथ। हाँ, ये है, वो एक तरीका है देखने का, लेकिन एपिक थिएटर में वो पैटर्न अलग है। फिलॉसफी, जो मेन मोटिव है महाभारत में, क्या होता है, महाभारत को जब लिखा गया था, शायद वी डोंट नो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, लेकिन इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है ये आज भी रेलेवेंट है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है, ठीक है। That we know now because we have observed that through time, ठीक है। एपिक थिएटर में ये डेलिबरेटली ये चीज क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि हिस्ट्री में कुछ एक हुआ है, वो आज भी हो रहा है और वो ये है। तो ये जो एक इफेक्ट जो महाभारत जैसे जो एपिक प्लेस देते हैं, वही इफेक्ट या फिर वही कैरेक्टरिस्टिक्स
इसमें है, उसके एलिमेंट्स हैं एपिक प्ले में, ठीक है. So yeah, you have given a very good example in that way. Now, अच्छा एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है एपिक थिएटर में, वो है spoiling of dramatic tension by telling spectators what is gonna happen, usage of tablets. तो ये जो ड्रामेटिक टेंशन है, ये हम लोग जो डिटेक्टिव मूवीज देखते हैं, ठीक है, या फिर एक बहुत ही ड्रामेटिक अभी फाइटिंग सीन चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि लास्ट में कौन जीतेगा, ये एक बहुत ही बड़ा एक टेंशन क्रिएट होता है, ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट होता है. वी आर ऑलवेज एट द एजेस, हम ऐसे चेयर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ओ गॉड अभी क्या होगा क्या होगा. इस चीज को एकदम से तोड़ने की कोशिश किस तरीके से, सीन शुरू होने से पहले ही बोल दिया यहाँ पे ऐसा ऐसा घटना होगा, ये अचानक से मारा जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि ये जो आदमी है उसी ने मारा है, पहले ही बोल दिया. तो वो जो ड्रामेटिक टेंशन है उसको क्रिएट होने ही नहीं देना, ताकि ऑडियंस हमेशा सजग रहे, हमेशा अवेयर रहे, हमेशा जो भी दिखाया जा रहा है उसमें बह न जाए, उसको एक घटना के तौर पे. हम जब न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, हम जब न्यूज पढ़ते हैं उसको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पढ़ते हैं, हम उसमें ड्रामा नहीं ढूंढते. Can this be said as breaking the suspense of the drama or breaking the suspense of the scene? That's very important. Yeah, absolutely. ब्रेकिंग से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि आप स्पॉइलिंग वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है. It is really, they really intend to spoil it because they continuously keep you in this with this thought कि आप बिल्कुल कॉन्शियसली देखो, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन करो, बह मत जाओ इसके साथ, ठीक है. हाँ, यस रोहन. Cinema and theater use a element of emotion to draw the audience to themselves. Actors also use this kind of tool. Why are they straying away from these fundamental emotions that can captivate the audience even more? They might not completely stay away from these fundamentals. कहीं इट इज वेरी सिलेक्टिव कि इस प्ले में ये चीजें जरूरी है तो हम इसको यूज करेंगे. सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि व्हाई ऑडियंसेस गो टू द थिएटर. ये जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना ऑडियंस किसी भी प्ले से, दैट इज द मोमेंट व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग एंटरटेनमेंट. इनका बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांगली ये एजेंडा है कि हम आपको एंटरटेनमेंट देने तो बिल्कुल नहीं बैठे हैं, यहाँ पे हमारा एक मैसेज है. हाँ मैम, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाते हैं कि हाँ वो भी होता है कभी कभी. यस कभी कभी वो भी होता है कि थोड़े डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में एक सीन को प्रेजेंट कर दिया कि साइड में एक आदमी मरा पड़ा है और साइड और नेक्स्ट विंग से लेफ्ट ये स्टेज के राइट साइड में एक आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड से एक एक्टर घुसा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है. एक आदमी घुसा और उसने पूरा बताया कि ये जो आदमी मरा पड़ा हुआ है ना, इसके साथ ये हुआ है, ठीक है, इसके साथ ये हुआ है, ये घटनाएं घटी हैं. और यहाँ पीछे आपको ये प्ले कार्ड दिख रहा होगा जो कहता है कि अभी अभी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ठीक है, तो ये आदमी उसी से मरा. तो या दीज आर द काइंड वेरी अनकन्वेंशनल, वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एट टाइम्स. तो वही चीजें क्रिएट करना कि कभी क्यों ऑडियंस नहीं क्वेश्चन करती कि हम जो दिखा रहे हैं, क्यों ऑडियंस क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि कोई जर्क नहीं क्रिएट होता देखते वक्त ना. वो इतना स्मूथ ट्रांजिशंस रहता है कि ऑडियंस बहती चली जाती है और कहानी देखने लग जाती है और एंटरटेनमेंट लेने लग जाती है, उसको मजा आने लगता है कि अरे वाह इसके बाद क्या हुआ. So they deliberately, continuously keep on questioning that, keep on breaking that pattern. Yes, Rohan. Ma'am, but then how do they keep the audience engaged? Like they keep the audience. See, ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट देना ही एक तरीका नहीं है उनको एंगेज करके रखने का, ठीक है. और अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं एज एन ऑडियंस, यू आर रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज शोन इज रियली बॉदरिंग यू एज एन ऑडियंस,
तो आप नहीं जाओगे छोड़ के, और इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप छोड़ के जा रहे हो देन आप जाओ, आपके लिए है ही नहीं ये प्ले, ठीक है। If I am doing an epic theater and someone is not sitting till the end just because उनको entertainment नहीं मिल रहा है, मेरे लिए भी अच्छा, आप जाओ यार आपके लिए ये प्ले नहीं है शायद, अगर आपको ये नहीं इफेक्ट कर रहा है तो नहीं है आपके लिए प्ले, फाइन। So in that way, it's a very good way of filtering out also your audience ki who really want to be with you. All right. So, Megha, what we'll do is we'll break for 10 minutes. Right now it is 7:05. So we'll meet at 7:15 and then we'll continue. Okay? ठीक है. Okay. Thank you. I'll just mute myself then. Yeah, please. Yeah, ma'am. Thank you. So we can start now? Yes, absolutely. Okay. So break में जाने से पहले what we were saying is a very good question or a very good example was given by one of the students ki Mahabharata is also an epic play. So yes, that is epic because that is relevant always, and in the same way epic theater aims at covering or showcasing, representing, questioning whatever is happening now. अभी relevant क्या है, अभी क्या हो रहा है, and that's why it is epic. ठीक है. Now, अच्छा, epic theater में there is another thing which is very like बहुत ज़्यादा use होता है, and that is tableaus. Tableau, what is a tableau? It is not a scene, लेकिन it is a photographic recreation of a scene. ठीक है. आपने रिपब्लिक डे परेड देखा होगा, उसमें हर स्टेट के एक टैब्लोज निकालते हैं, राइट, कि एक फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. तो उसी तरीके से सारे एक्टर्स को एक स्टिल पोजीशन में एक सीन क्रिएट करना और उसको स्टिल पोजीशन में थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना, एक फोटोग्राफिक इफेक्ट निकाल के लाना. सो सच थिंग्स आल्सो आर यूज्ड वाइडली इन एपिक थिएटर. ऑलराइट. नाउ अब जो शायद if I'm not wrong, all of you are the aspiring actors who want to be a part of FTII, right? If I'm यही है ना? Yes, ma'am. एक जो क्वेश्चन है जो रोहन ने भी किया था वो ये है कि how to act in an epic theater. एक एपिक थिएटर का एक्टर को कैसे काम करना है, कैसे वो एक्ट करता है. ऑलराइट. सो ब्रेख्ट बिलीव्ड दैट द एक्टर शुड, सो वो अपने एक्टर्स को ये सजेस्ट करता था कि मेरे मतलब एपिक थिएटर में इस तरीके से काम करना है. वेरी वेरी गुड एंड सिंपल डायरेक्ट पॉइंटर्स ही हैज गिवन. मूव एज इफ ब्लॉकिंग मूवमेंट्स ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम और इन अ रोबोटिक और ड्रीम लाइक वे. जैसे कि we have already discussed how epic theater does not emphasize on the realistic representation but rather what it is trying to say. epic theater का जो main motive है वो ये नहीं है कि हम कितना अच्छा एक प्ले कर सकते हैं, बट उनका मोटिव ये है कि ऑडियंस को क्या फील हो रहा है, जो हम ऑडियंस को फील कराना चाहते हैं क्या उनको वैसा फील हो रहा है. तो उस चीज को अचीव करने के लिए दे यूज अ लॉट ऑफ पैटर्न्स. ठीक है. सो वन ऑफ देम इज एक्टर्स आर इंस्ट्रक्टेड कि आप लोगों में से अगर किसी ने प्ले किया होगा, ठीक है, तो उसमें जब आप नया कोई एक प्ले उठाया है डायरेक्टर ने और आपको सारी कास्टिंग हो गई और अब हम प्ले को ब्लॉक करेंगे. ब्लॉकिंग का मतलब है स्टेज के ऊपर इस सीन में क्या क्या मूवमेंट्स होंगे. एक्टर राइट विंग से अंदर आएगा, स्टेज के बीच में आके चेयर रखेगा, बैठेगा, अपनी बातें कहेगा, ठीक है, और उसके बाद हो गया तो चेयर के पीछे जाके खड़े हो जाएगा. नाउ व्हाइल ब्लॉकिंग दिस इन द इनिशियल स्टेज it might look very mechanical because you are just sorting out the movement.
आप बस मूवमेंट तैयार करें कि हाँ ये करना है, इसको हम फिक्स करेंगे, उसके बाद वी विल वर्क ऑन द मोटिवेशन कि मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं क्यों स्टेज के अंदर आया, ऐसे नहीं आने के लिए नहीं आ रहा हूँ, देयर इज अ रीजन, मे बी समवन कॉल्ड मी, या फिर आई हैड कम हियर बिफोर, मतलब सीन मान लीजिए ऐसा है कि ये एक स्पेस है, यहाँ पे मैं पहले आया था, लेकिन आने के बाद मुझे चेयर नहीं मिला, तो मैं बाहर गया, चेयर उठा के लेके आया, रखा, और मैं बैठा, ठीक है। नाउ दिस होल thought process is the motivation behind, might be the motivation behind an actor who has to come through the wing, bring a chair, keep the chair in the center of the stage and sit on it, ठीक है। ये एक मोटिवेशन में भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, जरूरी नहीं है मोटिवेशन की, आपको क्या करना है, वो अंदर आना है, एक चेयर को रखना है, बैठना है, just do it. You don't need to make it, real filled with real emotion. No, motive अलग है हमारा, ठीक है। और maybe do it in a robotic way, just to break that, जो हमने अब तक जितना भी जो भी कहा कि एलियनेट करना है, ठीक है, एक फोर्थ वॉल को ब्रेक करना है, ऑडियंस के इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को बंद करना है, तो वो सारी चीजें अचीव करने के लिए एक एक्टर किस तरीके से एक्ट कर सकता है, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, कि एकदम मैकेनिकल मूवमेंट की के तौर पे कि एज ए फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, आप बस आ रहे हैं, रख रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, बट देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। रोबोटिक भी हो सकता है, आपको अगर रोबोट की तरह बिहेव करना है कर सकते हैं, अनरियलिस्टिकली कुछ भी आपको इसमें डालना है, कोई एलिमेंट डालना है, आप डाल सकते हैं, दैट इज व्हाट ब्रेख्त सेज, ठीक है। Then treat voice and movements differently so that they should not match. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले एक्टिंग की क्लास करी है, या फिर एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस है, स्टेज पे काम कर चुके, या किसी शॉर्ट फिल्म पे काम कर चुके, ऐसे कितने लोग हैं, थोड़ा सा बताए। ओके, रोहन है, एंड ओके, सचिन इज देयर, सो अ फ्यू पीपल आर देयर, ठीक है। आप लोगों मैम ने मैंने बस एक महीने का कोर्स किया है। हाँ ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना आपको, तो उसमें आपको ये चीज थोड़ा सा आप इस चीज से रूबरू हुए होंगे कि वॉइस को वॉइस की ट्रेनिंग होती है, इस तरीके से होती है ताकि आप जब कोई बॉडी मूवमेंट, कोई एक्शन कर रहे हैं, उसमें आपकी स्पीच सही से सिंक हो, ठीक है, उसमें आपका एक्शन और आपके डायलॉग में एक सिंक हो, जैसे कि अभी मैं बात करते हुए मैं एक जेस्चर कर रही हूँ, now I will not do this gesture first and then talk, I would want this whole thing to look natural, that's why I would try to sync in my voice and my movement. Exactly इसी का ऑपोजिट ब्रेख्त कह रहे हैं कि वॉइस को अलग ट्रीट करो, बॉडी मूवमेंट को अलग ट्रीट करो, जरूरत नहीं है सिंक करने की, ठीक है। आपका वॉइस एक अलग प्रॉपर्टी है, वो शायद कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो शायद कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा एक इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते, तो हमेशा जरूरी नहीं है ये करना। तो इसका अगर ये सुनते हुए अगर एक एग्जाम्पल के बारे में मैं सोचूं, रैंडम इमेजिनरी एग्जाम्पल, ठीक है, कि मे बी देर इज अ सीन वेयर देर इज एन एक्टर जो बहुत ही दर्द भरे इमोशन से शायद वो बात कर रहा है, लेकिन बॉडीली वो शायद कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि बहुत ही मैकेनिकल लग रहा हो, ये एक्चुअली बहुत आसान नहीं है, ये मुश्किल ज्यादा है, ठीक है। देन स्पीक स्टेज डायरेक्शंस अलाउड, ऐसे कुछ एक्चुअल में प्लेस है जहां पे स्टेज डायरेक्शंस लिखे हुए हैं और एक्टर्स उसको जोर से पढ़ते भी है, ठीक है। जैसे कि अब जो ये मान लीजिए देयर आर टू एक्टर्स, ठीक है, देयर इज वन एक्टर हु इज स्टैंडिंग एंड देयर इज अनदर एक्टर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो अभी ये जो आदमी है ये सामने आएगा और आगे वाला बक्सा उठा लेगा, वो सामने आया,
बक्सा उठाया। अब ये बक्सा लेके वो साइड में टर्न होगा और बक्से को जोर से नीचे गिराएगा। तो वही किया, घूमे और जोर से नीचे गिराए। तो इस तरीके के एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। देन rather than speaking dialogue, speak as if quoting someone else. डायलॉग के बजाय ये बात उन्होंने कही कि हमारा तो घर बार ही लुट गया। ठीक है, ये तो मैं खुद भी तो बोल सकती हूँ, वो कैरेक्टर बन के भी तो बोल सकती हूँ, लेकिन बिना कैरेक्टर बने आई एम कोटिंग अनदर पर्सन कि दिस पर्सन सेड दिस। ऑलराइट, सो इंस्टेड ऑफ डायलॉग, quotations of another character. Then remain physically and emotionally detached from the other actor. आप जब एक्टिंग करते हो, आप अपने को एक्टर के साथ एक वो जो केमिस्ट्री की बात हम करते हैं ना कि यार ये जो सीन है ना, इस सीन में ये जो दो दोस्तों का जो ये सीन है, गजब की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि these two characters and these two actors rather are really emotionally attached to each other. That's why there is a chemistry between, there is some kind of a spark. इस चीज से परहेज करना है। नहीं, वो साथ वाला जो है वो एक एक्टर ही है, ये मुझे बोलना है और वो आके बोलेगा, इमोशनली उतना अटैच नहीं होना है। इमोशनली अटैच हो गई तभी तो ऑडियंस को मजा आने लग जाएगा कि अरे वाह क्या केमिस्ट्री है ना। सो टू स्टे, ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट। अगेन मैं आपको ये बार बार कह दूं कि ये जो सारे सजेशंस है, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही परफॉर्मेंस में हो, जरूरी नहीं है ऐसा। इनमें से जो भी ठीक रहेगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा, उस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। ऑलराइट, और हाँ कभी कभी ये सारे भी हो सकते हैं, इट रियली डिपेंड्स। देन play scenes with mismatched emotions. For example, humor in a sad scene. ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है कि ये जो मिसमैच्ड इमोशंस है, कॉन्ट्रास्ट्स है, इन सारी चीजों को क्रिएट करना बाय पुटिंग एन इमोशन व्हिच इज रियली नॉट फिटिंग इन दिस सीन। तो और ये चीजें क्या करती है, ये जो एक एक्सपेरिमेंट है ना, ये मुझे लगता है हम अपने लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस देखते हैं कि किसी की डेथ हो गई, लेकिन as a guest you went there and you find something very funny and you have found some humor in that scene also. ठीक है, तो इस तरीके से and perform directly to the audience. Breaking of the fourth wall, directly audience से बात करना, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। सूत्रधार का जो काम होता है कि परफॉर्मेंस को और ऑडियंस को बीच में बांधे रखना, लेकिन मोटिव यहाँ पे मोटिव अलग है, लेकिन नेचर एक ही है कि डायरेक्टली ऑडियंस से बात करना, डायरेक्टली उनसे कनेक्शन बनाना और उनसे पूछना, एंड ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन आउट ऑफ इट। ठीक है, एक्सचेंज रोल्स विथ अदर एक्टर्स। आप अभी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, ठीक है, सडनली आपका जो को एक्टर था उसके साथ आपने कैरेक्टर एक्सचेंज कर लिया। इतने देर तक वो मरा हुआ आदमी था, अब वो उठ गया है, वो आपकी जगह आके बातें कर रहा है, आप जाके मरा हुआ आदमी बन गए। दैट ऑल्सो प्लेइंग मल्टीपल कैरेक्टर्स। अभी आप ये कैरेक्टर बन के बात कर रहे हैं और भाई कैसा चल रहा है, नेक्स्ट दूसरा एक्टर आप जो को कैरेक्टर है वो बन गए, नहीं यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, अरे क्यों, क्या हो गया, अरे देखना क्या हो रहा है मेरे साथ। समथिंग लाइक दैट, प्लेइंग मल्टीपल कैरेक्टर्स और प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ द एक्सचेंजिंग कैरेक्टर्स। ऑलराइट, perform the roles as if critically appraising the action from afar. ठीक है, आप क्रिटिकली उसको एनालाइज भी कर रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग बहुत ही बदला कर रहे हैं। आप भी उस प्ले का पार्ट हो, आप भी उस टीम के पार्ट हो, बट इवन इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर
criticizing them, क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है, अच्छा ही नहीं, मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग. So these kind of elements, I don't know how I'm being able to explain, मतलब आपको कितना समझ आ रहा है वो थोड़ा सा, but if you can have some visual reference to this, anyways, कहीं भी कुछ डाउट आए आप पूछ ही सकते हैं. Then now there is a very important area when it comes to playing a Brechtian character or playing in a Brechtian play or an epic theater, and that is gestus. Gestus is a very important aspect of epic theater. Okay. Now what is gestus? Gestus is, in a very simplified way, gestus is a symbolic gesture. Okay, a symbolic action. Now symbolic in what ways? दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो हाँ मुझे चाय पीना है, तो एक्चुअल में चाय ना पी के मैंने बस एक जेस्चर कर दिया, बहुत प्यास लगी है, चलो पानी लाओ, हाँ हाँ ठीक है. Now this can be a gestus where you are just using a gesture, symbolic, वो बस एक रेफरेंस देने के लिए कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं. This is one thing. It is used in epic theater a lot. Now there is another thing where I would like to read this out. Another technique where there is a clear gesture or movement used by the actor that captures a moment or attitude rather than delving into emotion. ठीक है, जस्ट यहाँ पे आके ये एक्शन मुझे करना है, एक तो वो हो गया कि उसमें कोई इमोशन नहीं है. दिस इज ऑल्सो अ जेस्टस. नाउ देयर इज अनदर थिंग वेयर gestus is also a social comment. Now a gesture which is, अभी तक मैंने जितना बताया वो एकदम सिंपल मैटर ऑफ फैक्ट कि हाँ जेस्चर क्या है, मैंने एक जेस्चर किया, मुझे पानी पीना था, मैंने ऐसे पानी पी लिया, उसमें कोई इमोशन नहीं कि मुझे पानी पी के कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, नो, नन ऑफ दैट, जस्ट एक एक्शन जो मुझे दिखाना था. दिस नाउ the social comment, there is another meaning to gestures, जो एक ऐसा gesture जो एक complete comment है अपने आप में. All right, for example, a soldier saluting as he marches across a stage is a gesture. ठीक है, soldier जा रहा है, वो salute कर रहा है, this is just a gesture. When does it become a gesture? But if he was saluting as he marches over a stage strewn with dead bodies, it would be a gestus, as a social comment about how the type of person he represents. बहुत सारे लाश पड़े हुए हैं, लाशों के ऊपर से वो उन पे पैर रखते हुए वो जा रहा है, and there is a, there is so much peace and so much happiness, and the face is so peaceful and satisfied, और उसी हालत में वो सैल्यूट करते हुए जा रहा है. Now this whole scene is a gestus, it is a comment कि things like that happen, you lose empathy or and we become ruthless, we don't even realize that we are being ruthless. ठीक है, now this is a comment in itself. Now this whole thing is also gestures. ठीक है, yes Rohan. I mean, this way, how do you determine who's a good actor and not that good actor? शायद यहाँ पे वो उतना ज्यादा here in epic theater it is really not the question of who is a good actor and who is a bad actor, or rather if you really have to determine it, then maybe you can determine it in a way कि किसका performance सबसे ज्यादा ना इफेक्ट किया ऑडियंस को, उस तरीके से इफेक्ट किया जिस तरीके से आप एपिक थिएटर वाले इफेक्ट करना चाहते हो. क्या आप कर पाए एज एन एक्टर वो चीज, क्या आप वो जो घाव में नमक छिड़कना था, क्या वो आप कर पाए किसी भी सीन पे? ठीक है, could you really achieve what you wanted to achieve? I think that would determine कि if you are a good actor or a bad actor in an epic play, क्योंकि उसका मोटिव ही अलग है. हाँ, yes.
One more, ma'am. For example, if we talk about other art forms, although we should not compare. For example, any other art form, it depends upon practice and कि कितना हम उस चीज को कितना precisely perfection कर सकते हैं जो हम imagine करते हैं सर. In epic theater, what does an actor look for? For example, in any, yeah, मतलब कि मैं what should I look for कि यहाँ तक पहुँचना है? Okay. So, in an epic theater, first of all, your ideology. Are you really, as an actor, आपकी जो अपनी आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या एक सोशल आइडियोलॉजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो मैच कर रहा है इस प्ले के साथ? मैं ये प्ले क्यों करूं? इसमें जो आइडियोलॉजी दिखा रहे हैं, जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं, मैं नहीं इत्तेफाक रखता उस चीज से. ठीक है, दिस इज वन. लेट मी कंप्लीट. ठीक है, दिस इज वन. सेकेंडली, एज एन एक्सपर्ट एक्टर, एक जो एक्टर का एक्सपर्टीज है वो किस तरीके से टेस्ट हो सकता है एपिक थिएटर में? बाय, देखिए, व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, ठीक है, यू जस्ट हैव, देयर आर सीन्स व्हिच माइट नॉट बी, शायद आपके डायरेक्टर ने ये आप पे छोड़ दिया होगा कि यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करना है, बाकी तुम देख लो कैसे करना है. फॉर एन एक्टर, इफ यू आर रियली अ प्रैक्टिसिंग एक्टर, आपका जो हुनर है वो इस तरीके से टेस्ट होगा कि आप कितने अच्छे से उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बाय नॉट लुकिंग नर्वस. व्हेन यू सडनली हैव टू रियली टॉक टू एन ऑडियंस, you have to be an expert performer to be able to do that effectively. All right. ये जो बहुत सारे प्लेज या फिर बहुत सारे, अगर स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूं या फिर कुछ कॉमेडी परफॉर्मेंसेस जहां पे बहुत सारा ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन है, इफ यू आर अ वीक परफॉर्मर, यहाँ पे मोर देन एन एक्टर आई वुड बी लुकिंग फॉर अ परफॉर्मर, कि परफॉर्मर कौन है रादर देन एन एक्टर. ठीक है, तो ये एज अ परफॉर्मर एक्सपर्ट कौन है, मैं उसको लेना चाहूंगी अपने प्ले में, बिकॉज इट इज एन एपिक थिएटर. यहाँ पे बहुत सारे उस परफॉर्मर को बहुत सारी चीजों से डील करना है. उसको अचानक से वो जो एक रो रहा था, अचानक से उस वहां से स्विच करके एक फालतू सा जोक भी क्रैक करना है, so that it affects the audience. Also, in the other scene, you have to come and really talk to an audience, and you do not know what will be the reaction of an audience. जो भी reaction होगा, आपको उसको handle करना आना है. So these are the which are more complicated to handle as a performer, as an actor. All right, Rohan, could I answer your question? Yes, ma'am. Okay. So yeah, I guess we could understand what a gestus is. Gestus is something which is used in epic. Ask you something. Yes. In a film by Peter Brook on Mahabharata, yeah, and he casted people from all over the world, which was against the expectation of Indians, that the Indians cannot expect a Nigerian to play Arjun or someone else. Right. Same for the Krishna also. Is it also a part of the Bertolt Brecht theory that to break the expectation of the people from the beginning? Many elements have been borrowed, of course, but also at the same time we have to understand one thing कि ब्रेख्ट ने जो भी एलिमेंट्स अपने एपिक थिएटर में यूज किए हैं, it's not all of them are not originally his ideas, but the way he would use it, the ideology behind using it is definitely his own idea. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पहले से बोरो की गई हैं जिनको उसने अपने हिसाब से उसको फंक्शन में लाए हैं. ठीक है, इन द सेम वे ये जो पीटर ब्रूक का महाभारत है, यस ऑफ कोर्स, ये जो ऑडियंस का एक माइंडसेट है, ये मैंने जब पहली बार देखा था, इन द फर्स्ट सीन आई रियली कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये भीष्म ये जो प्ले कर रहे हैं, मेरा जो आइडिया है भीष्म का, दिस इज समथिंग वो जो महाभारत हमने देखा था वो. But after a point of time, I am so convinced because of the quality of performance. Yeah,
सो यस, यहाँ पे हम बहुत सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं. इट इज हाईली मिनिमलिस्टिक. जो पीटर ब्रूक का महाभारत है, हाईली मिनिमलिस्टिक, बट एट द सेम टाइम वी आर टोटली, वी बिलीव इट. हम बिलीव कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही होगा. इतने पहले what happens is when it come as an audience, ये मैंने थोड़ा सा ये psychology होता है audience का, कि after a point of time when you are really convinced with the performance which is happening, you stop questioning also and you start believing and rationalizing. हम खुद ही rationalize करने लग जाते हैं director के perspective को, कि हाँ इतने पहले का दिखा है तो गुफा में ही रहते होंगे ना. इतने बड़े बड़े अगर हम रियलिस्टिक प्रैक्टिकली देखें तो इतने पहले कहाँ ही होंगे, हमें तो पता नहीं है. इतने बड़े बड़े महल होते होंगे कि नहीं, हमें तो पता नहीं, गुफा में ही रहते होंगे. तो दिस इज व्हाट आई आल्सो स्टार्टेड सेइंग टू माई सेल्फ कि हाँ ये सही है. थोड़ा सा हाँ यहाँ पे थोड़ा ब्रेख्ट के साथ थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कि यहाँ पे एक बिलीवेबिलिटी क्रिएट हो जाती है एक पॉइंट के बाद, ब्रेख्ट में नहीं भी हो शायद, उसका मोटिव अलग है. बट यस एब्सोल्युटली कि पीटर ब्रूक के महाभारत में बहुत सारे ब्रेख्टियन एलिमेंट्स लिए तो गए. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू स्टडी, नॉट ओनली फॉर ब्रेख्ट बट फॉर अदर. ये बहुत अच्छी फिल्म है स्टडी करने के लिए भी. देन अच्छा, नाउ ये अभी अब तक हमने जितनी बात की, ये था कि ब्रेख्ट अपने एक्टर को किस तरीके से ट्रीट करता है या फिर क्या चाहता है अपने एक्टर से. नाउ ब्रेख्ट एंड हिज ऑडियंस, व्हाट Brecht expects from the audience, from his audience. All right. First of all, Brecht अपने audiences को, he used to refer them as spectators. Audience is when we are supposed to please you. That's when you are an audience. I refuse to denote you as an audience. You are a spectator. आप देखने आए हो, यहाँ पे एक घटना घटने वाली है, आप देखने आए हो. just like हम बाहर कहीं जाते, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया था कि हम बाहर जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते में. This could be a question. Those people who are sleeping with their videos off, please wake up. Note it down. That what is the difference between an audience and a spectator? Exactly. Write a short note of 3 marks or 4 marks. Note it down before my main purpose of participating in this thing is to pick up the questions on and off, although I'm making my notes and I would be also trying to figure it out, but you also need to make the notes out of this whole discussion of 1 hour 45 minutes. Now, what are the possible questions, like what are the various elements which we call it as a Brechtian elements, which are used in a Indian film, which are used in any film which you have recently seen, or which is used in any of the regional film, whatever. So they could give you option and then you need to write. Please carry on. हाँ, अच्छा, यहाँ पे there is a very good question from Saurav. He is asking कि what is the difference between an actor and a performer? It's a very good question, Saurav. Thank you so much. So an actor is someone who tries to portray a character. All right. आप एक character portray कर रहे हो. You are becoming someone and you are portraying the character. A performer is someone जिसका main and the only motive is to grab your attention. आपका attention hold करके रखना. जैसे कि मेरा हमेशा ये motive रहता है कि when I'm teaching, I better become a performer. नहीं तो my motive is to grab your attention all the time. All right. So yeah, okay, a performer's ideology is that the main motive of a performer is to continuously have the audience's attention. ठीक है? So that it's a very hairline difference, but this slight difference is actually very deep if you try to understand it in that way. ठीक है? मैम, बहुत सारे एक्टर अपनी बायो में, इंस्टाग्राम की बायो में एक्टर की जगह आर्टिस्ट लिखते हैं. उसका क्या मतलब? आंसर देता हूँ. उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है. जब लोग अपना बायोडेटा, जब आप अपने कभी जिंदगी में 10th का फॉर्म भरा होगा, उसमें एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन ऑब्लिक ऑक्यूपेशन. क्या फर्क होता है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में, बताएंगे प्रशांत? सर मुझे तो सेम ही लगते हैं.
तुम्हें सेम लगता है ना जी। ऑब्लिक दो शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब दोनों चीजें ही सेम है तो दो शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? जिसका मुझे हिंदी में मतलब लगता है व्यवसाय। तुम हिंदी हमें समझ आती है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं समझ बोलनी आती, कोई बात नहीं, आप हिंदी में बताइए मुझे, मेरे को हिंदी समझ आती है, मैं भी हिंदी मीडियम का आदमी हूँ। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में फादर के क्या फर्क, बोलो। सर मुझे दोनों का हिंदी मतलब व्यवसाय लगता है। तुम्हें लगता है ना, बट है क्या, कभी तुमने सोचा? अगर जी एक नहीं। तो दो शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी वहां पर? आपका सर बहुत से सवाल मुझे नहीं पता। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, इतने साल हो गए फॉर्म भरते हुए तुम्हें, अभी एफटीआई का भी फॉर्म भरोगे तो फर्क कुछ होगा, फर्क होगा तभी तो दो शब्द लिखे हुए हैं। और यही मैं कह रहा हूँ सर, आर्टिस्ट में भी तो कोई फर्क होगा, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। तुम तो वैसे ही पूछ रहे हो। नहीं सर, तुम खुद सोचो, और तुम खुद सोचो पहले क्या फर्क है। तुमने भी तो सोचा होगा ना कुछ फर्क है कि नहीं है, क्या फर्क है तुम्हारे हिसाब से? कल सोचना, हिंदी में लिखना। सर मुझे बस इतना पता है। बात सुन लो, कल सोचना, हिंदी में लिख के मेल करना उसको, हाथ से नहीं, पेपर पे लिख के नहीं, फोटो वर्ड फाइल में लिख के भेजना, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर किया, ठीक है? और थोड़ा ओके सर। करना चालू करो जिंदगी में, क्योंकि तुम हमेशा बीच में कूद जाते हो और सोते रहते हो अपना आराम से चक्कर हो। ये भी एक एपिक थिएटर का एग्जांपल है सर। प्लीज करियो। ओके ओके। ये जो एक्टर और आर्टिस्ट का डिफरेंस है, ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम अभी इस पे बात कर रहे हैं, अब उस पे बात करने लग जाए तो टाइम निकल जाएगा। ऑल राइट, some other day maybe we can talk about it. So let's get back to what we were talking. ठीक है? हाँ, so एक स्पेक्टेटर की तरह वो ट्रीट करते, वो कहते हैं कि ये ऑडियंस नहीं, ये स्पेक्टेटर है, देखने आए हैं तो दिखाओ इनको, ठीक है? So that is one. Secondly, wants them to question and challenge what is being shown. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेख्त ये सच ये जो इतने सारे मेथडोलॉजीज उन्होंने यूज किया है कि एक्टर को ऐसे करना चाहिए, सेट को ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बीच में कॉमेडी डाल दो, ये इतना सारा जो इतनी सारी चीजें, मोटिव क्या है? ताकि ऑडियंस थोड़ी सी जागे और क्वेश्चन करके, अरे ऐसा होना चाहिए था ना, एक्सपेक्टेशंस मेरे ऐसे, तो why is it like that? Question that, challenge, no, it shouldn't be like that. तो ब्रेख्त एक्चुअली चाहता था कि ऑडियंस should be provoked, they should be disturbed by what is being shown, they should not agree, fine, don't agree, you come to me, come and argue with me, so all that. Yes ma'am, the term spectator that Brith has used, to simplify it to my understanding, can I take the example of people watching a live football match, like spectators, like even there they are seeing an event and getting involved in it, and they are going to question it also, like why the pass did not go this way, or they might get angry or something like that. Just for my understanding, I might be wrong as well. Yeah. Not really, because spectator is when see, when you watch a football match, you know what is the result, either जीतेगी नहीं तो हारेगी, all right, either there is a winning or there is a losing. So the audience already know that there is an end to it, what kind of end it might be, and after all, the players are there to present something for the audience, all right. When it comes to a spectator, things become much more क्या बोलते हैं उसको, unsure, not unsure but indefinite, ठीक है, sorry, uncertain, there is a lot of uncertainty in it. Okay, nuance. So there is a lot of uncertainty in the pattern. So even the maker of this epic theater, this epic ये जो pattern है, even the maker or the director of this play knows that the audience must be coming with a very, with an idea कि हाँ play है, ऐसा ही होगा. लेकिन उसके बाद जो चीज़, this term, it's a very interesting term. It comes originate from a word called speculation.
we speculate. हाँ. Like in a share market, you don't know whether tomorrow the share will go up or down, up or down. Exactly. So you speculate. Oh, because today there is a bombardment, 9/11 has happened, tomorrow the share market will crash. Maybe. Right. There is a emergency, there is a, what we call Indian currency demonetization happened, announced. Now because of that, something would go wrong. So there is a speculation happening in share market, for example. So something which you don't know. It can go up, it can go down also. Yeah, and you're continuously thinking कि ये ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा फिर. अच्छा, so that thinking audience, ठीक है. आप लोग FTI में जाना चाह रहे हैं. FTI के जो फाउंडर है ऋतिक घटक, वो एक बहुत ही उम्दा लाइन कहते थे जो मेरी it's a favorite line of mine कि think, practice thinking. सोचो, सोचने की प्रैक्टिस करो. क्योंकि हम सोचते नहीं है. We as an audience, we are so spoon fed कि हमें वो सोचने का स्कोप मिलता ही नहीं है. And that's what Brecht tries to do कि you see, you speculate. सोचिए आप, ऐसा होना चाहिए. अरे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? Question, challenge. And that's precisely why it calls its audience, it calls whoever comes to watch his play as spectators, not audiences. क्योंकि स्पून फीडिंग तो नहीं होगा. ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी शायद ना आए, but try to understand. If you are not understanding, question and so stuff like that. Okay. Yeah. Wants to provoke them rather than pacify. ठीक है, जो ऑडियंस है उसको प्रोवोक करो, जले पे नमक छिड़को, रादर देन उनको शांत करो कि वो शांत होके आराम से बस ऐसे करके आराम से देखती रहे. उनको शांत नहीं करना है, उनको उनको प्रोवोक करना है. ठीक है, उनको एक रेस्टलेस करना है, रेस्टलेस बनाना है कि ये जो हम दिखा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड हाउ कम यू आर काम, हाउ कम यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड, आर यू मेंटली चैलेंज्ड. All right, are you not being able to understand क्या हो रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो पूछो. ये हमने ये कर दिया, एक्सेप्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, अच्छा, फाइन. सो yeah, really provoke them rather than pacify नहीं करना, satisfaction नहीं देना है. Yeah. Is it what Brecht is trying to instigate people to think on what is going on, like instigating people to bring out their emotions and display it and question what is happening actually and think about it, and Yes, absolutely. Think about it, and when you go out of this hall, when you go out of this auditorium, if you can really do something about it. All right. So yes, you are absolutely correct. See, inside a hall, when there is a performance, there is really a small group of people, all right, doing something, demonstrating something in a limited area. People who come there, people come from various places. There are 100 audiences, there are 100 minds which works in 100 different ways. So if you are really affected, take something out of this place, and if you can do something, do something. That is the ultimate motto. Okay, ma'am. Yeah. Can I stop? Yeah. Ma'am, yes. I feel it is stemmed out of sarcasm / a lot of that kind of elements. I don't know. I'll just think of the word. I just slipped my mind, and I'll type it in the chat. Sorry. Yeah. Okay. I think there was some question. वो मैं miss कर गई, बीच में मैं बात कर रही थी. So there is some, but I would rather. ये technique, I'll read it out. Yeah. ये technique entertainment को साइड पे रखती है, पर इसके एलिमेंट जो आपने बताए कि कुछ भी फिक्स नहीं है, लीनियर नहीं है, तो मेरा सवाल है कि नॉन लीनियरिटी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है क्या? नॉन लीनियरिटी, जरा शक्ल भी दिखा दो थोड़ी सी. कमल सो रहे हो? जाग जाओ, थोड़ा आंसर आ गया तुम्हारे क्वेश्चन का. सो रहा है कमल, चलो कोई बात नहीं, और लोगों को.
Okay. अच्छा, one thing I would just like to say कि क्योंकि थोड़ा time limited है और कुछ चीजें और हैं जो cover करनी है, We can do so I it will little bit just. tomorrow also. We can do it little tomorrow. Oh, okay, okay. And ठीक then we'll है, continue ठीक है, with the ठीक है. That next would be technique which great. you want to discuss. हाँ, हाँ. Yeah, okay. That can be done. Ma'am, one question. So, uh, Can I? बोलिए बोलिए. yes, Uh, yes, Siddharth. so, as Yes. so far the conversation we had or the things that you have told us, I have understood this that breath instigates people to bring out their emotions and question the event that is happening in front of their eye and leave the hall with a question or an opinion in their mind and try to change it. Is it what it is that breath tries to do from his place? Not change it, I would say, not change it, but think whether it is right or not. Okay. Change means you don't Change believe in that. हाँ, बाद में आएगा. No, change in the sense, say he talks on political and social issues. So there are things happening around us which we would like to change. So breath through his plays instigates people to Think, kind of change, to think. Okay, not to whether it is change. right or wrong. Before Okay. that, you may not have thought about it. Okay, Yeah, okay. exactly. ये सेम वही एलिमेंट है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि भगत सिंह ने बम फोड़ा था, क्यों? बहरों को, ताकि सुनना आए. एटलीस्ट वो जो एक पर्दा है वो पर्दा हटे. यू लिसन, यू एनालाइज, यू स्पेक्यूलेट. आप खुद ही सोचिए कि ये सही है कि गलत है. पहले तो वो हो. चेंज तो उसके बाद आएगा. चेंज तो बहुत बाद में आता है, व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ एक्शंस हैपनिंग एंड देन a lot of things. The mechanism of change is little bit different, but before that, first you need to open your eyes. So basically, work as an eye opener in the real sense. Okay. Yes, Rohan. The word is satire. Will it be correct? Will it be correct if I say Brett Strater's center stone is satire? Is this statement correct? This satire thing is totally different thing. It has not been, it doesn't come into the preview so far as I have understood. Satire is totally different thing. What we are talking about is technique, his methodology, which is applicable to anything connected with, which is against the idea of entity. Satire can be one element. Satire can be one element, but satire is certainly not the central element of Brechtian or the epic theater. Yeah, it can be one element. ये जो कहीं अगर if some satire or some sarcasm is required थोड़ा सा effective बनाने के लिए for the audience to think more or feel disturbed, maybe it can be used. Of course, it will be used. I use the word satire because element. हाँ. I use the word satire because जैसे आपने बताया कि it pulls the audience and then disconnects it, and then pulls the audience, then disconnects it. Disconnects in the sense emotionally. That way. No, that is not satire. That is that because is when the you alienation joke or effect. something, कि आप जुड़ रहे हो. हाँ. Satire is just one element of alienating. ठीक है. ये जो आप अभी बता रहे हैं कि ना इसको ऑडियंस को ड्रैग करते और फिर तोड़ देते, ड्रैग करते तोड़ देते, दिस इज द होल alienation effect. All right. Now to create the alienation effect, satire can be used somewhere, but it is certainly not the central character. Got it. It can be a tool. Yeah, it can be a tool. But this whole thing is not satire. ठीक है. You had mentioned a point that for an actor should perform the roles as if he or she is critically analyzing actions from afar. Can you give an example for the same? जैसे कि I once just जो examples मैं दे रही हूँ ना, these are all imaginatory examples just so that you understand it in a very simple way. ठीक है. What happens? Suppose there is an action happening, there is a performance happening, and then you are the co-actor. At the same time, you're saying, "क्या कर रहा है यार?" मतलब you are a part of this team, but at that point of time, it would seem
as if you are also critically analyzing कि क्या कर रहा है, बहुत फालतू कर रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, एक्टिंग नहीं आती क्या? Maybe this whole thing is also part of that performance. So is it related to like one character is mocking the other character? No, it is not a characteristic of a character. It is not a constant characteristic of a character. ये बस बीच में कहीं मान लीजिए as a surprise element आ गया, just to break that whole rhythm. ये जो rhythm आ रहा था, तो one of the way of breaking this whole rhythm is you can, you know, be critical from a distance कि क्या हो रहा है. So an element, this is an element of breaking that rhythm. ठीक है? And yeah, maybe there might be a character who is totally entirely playing कि ये क्या चल रहा है and all, but that is not a very मतलब बहुत ही ज्यादा established चीज नहीं है. It is more about breaking the rhythm, and this is one of the tools of breaking the rhythm. All right. Ma'am, question. Right. Okay. Hello. Ma'am, am I audible? Yes, you are. Ma'am, I'm questioning that are the following genres like action comedy and romantic comedy and horror comedy are an example of epic theater, or can be considered as? What has given this question in your mouth? I mean, ये question किस तरीके से आ रहा है आपके दिमाग में? मैं मूवी जेनर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे हॉरर कॉमेडी के बेस पे बनती है फिल्म, एक्शन कॉमेडी के बेस पे बनती है. देखिए, एपिक थिएटर का जब आप ये सारी मूवीज देखते हैं, you get entertained is if at all it is giving you any ये जो मोटिव है एपिक थिएटर का वो बहुत अलग है. अगर उस मोटिव के बेसिस पे ये मूवीज बनी है तो शायद हो, लेकिन आप इस तरीके से एक ओवर एज अ होल ये आप नहीं कह सकते कि ये जो हॉरर कॉमेडी है, बिकॉज यहाँ पे हॉरर भी है कॉमेडी है तो दोनों एक साथ है, तो क्या ये एपिक थिएटर है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज अ जॉनर इन इटसेल्फ, एंड एपिक थिएटर इज अ फिलॉसफी, मोर ऑफ अ फिलॉसफी कि उसका एक मोटिव है, वो मोटिव अलग ही है, वो आपको एंटरटेनमेंट देने का या बहुत अच्छा एक्टर प्रूफ करने का प्लेटफॉर्म नहीं. इट इज रादर फॉर maybe creating a change or to question or to, you know, provide a mirror of what is really happening around you. So I do not know how this question arose in your mind because anyways. Forget it, ma'am. Question arises sometimes. Yeah, it's okay. That's okay. Yeah, absolutely. So gentlemen, we are almost done for today. Sir, last question please. Nahin. Please keep your question for tomorrow. I will absolutely answer. Write down your question, Prashant. Write down in Hindi, Devanagari Lipi. Only then your question will be taken. Sir, मैं बोल सकता हूँ सर. बहुत टाइम लगेगा. क्या बताना पड़ेगा तुम्हें? क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तुम्हें पता ही लगेगा क्वेश्चन का. तुम क्या है स्टेटमेंट डालने लग जाते हो. सर यकीन मानिए मैंने नोट्स बना के रखे हैं और मुझे दो यहाँ पे लिखो देवनागरी लिपि में जो तुमने नोट बनाया हुआ है टाइप करके यहाँ पेस्ट करो. आप अपना चैट के अंदर करो पेस्ट. टाइम लगेगा उसमें मैं कर दूंगा. टाइम नहीं, कल पहले बना के रखना. सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन लिए जाए. क्या हुआ सर? देवनागरी लिपि में हिंदी के अंदर टाइप करके यहाँ पेस्ट करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊं. ये वाली इंग्लिश नहीं है कमल वाली, मैम ये टेक्निक को साइड पे, ये वाली हिंदी नहीं चाहिए. हिंदी शुद्ध हिंदी के साथ. ठीक है, चलो. So Megha, what I would suggest is tomorrow whatever the pointer are left, just make 1, 2, 3, 4, 4 lines to them, and maybe you can send it to me, and then we will take it up in terms of pointers, and quickly we'll go through it, and then we'll move to another day. Yeah. Okay. Fine. Yeah. So you can sign it off, and then these people would mark the attendance. I will just do the polling. Yeah. All right. Okay, guys. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Thank you so much. Welcome. अटेंडेंस लगाइए, और जो लोग सो रहे थे अपना वीडियो डाल के अपना ऑफ करके एक बार समझ लेना. यहाँ पर पूरी बात सुन लो मेरी. क्वेश्चन आएगा एफटीआई के अंदर, वहां लिखना है, ये ध्यान रखना. तो क्वेश्चन क्या आएगा और आंसर क्या आएगा जरूरी नहीं है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बर्थेल्ड ब्रेड. ये हजारों साल से चल रहा है, कभी भी चेंज हो सकता है.
तो वो जो अंदर की जो चक्करबाजियां हैं जो आज बात हुई हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 5 मार्क्स का बतौर ड्रेथ के ऊपर नोट्स लिखो, और नोट्स लिखो तो क्या लिखोगे? तो आपके पास 5 मार्क्स हैं और वहां 10 लाइन है, तो अगर आपके पास पॉइंटर नहीं है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो नहीं लिख पाएंगे। ध्यान रखना। और कोई भी बकवास वहां लिखने लगोगे, पेपर में जगह होती है, वहां पे अपने घर से शीट नहीं लेके आओगे, आंसर शीट। वहां पर आंसर शीट मिलती है और उसके अंदर 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन लिखी होती है, और उस 20 लाइन में एक शब्द होता है हिंदी के अंदर, गागर में सागर, जिसको जो यूपी बिहार है उनको समझ आ गया होगा, जो अंग्रेज लोग हैं उनको मैं समझा देता हूं। प्रोफाउंड, बी ब्रीफ, टू द पॉइंट। इफ यू आर नॉट, go to Darbhanga and do the farming. Don't become an actor in FTI. Do whatever shit you want to do in your life. Don't come there. You have to be very, very focused and precise. That is what those people want in the answer sheet. उसके बाद बाकी बचे कुछ कितने बड़े तुम तुर्रम खान हो, वो सेकंड राउंड में क्लियर हो जाता है और बच्चा कुछ थर्ड राउंड में क्लियर। बट सेकंड राउंड तक पहुंचोगे तभी जब आंसर लिखोगे, और वहां पे पता होना चाहिए प्रशांत जैसे लोगों को कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या फर्क हो। चाहे हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ, बताना पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं एक ही जैसा होता है, तो उनका दिमाग खराब है। उन लोगों ने वहां लिखा हुआ है प्रोफेशन ऑब्लिक ऑक्यूपेशन, तो पर्पस होगा उसके पीछे। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आई एम जस्ट सिंपली ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग, दैट यू हैव टू बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, कीप मेकिंग नोट्स। मैं भी नोट्स बनाता हूँ यहाँ पर बैठ के। ये डायरी मैंने अपने लिए रखी हुई है, तुम्हारे लिए नहीं है, जिससे मैं उस चीज को दोबारा से थोड़ा प्रिसाइज करके फॉर्मुलेट करता हूं। चलिए, ओके गाइस, बाय बाय।